Start with the next topic, that is topic 3.5, beyond the four varnas, subordination and conflict. So I have told you those people who were not included in the society of which was based on varnas, uh, these people were discarded from the society, and they were uh, not means so much given, you can say, uh, they were looked down upon. So these people, they those people who were not included in the society of varna and who were looked down by the people of those who were included in the four varnas, uh, they also resisted the society of the four varnas, and so they were always having conflict with each other because they were following the different beliefs and the practices. So because of their different beliefs and practices, they were always having a rivalry, they were always having different opinions and views, and so they were always in conflict with each other. Beyond the four varnas, subordination and conflict. While the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed sharpened social divide by classifying certain social categories as untouchables. So, even though those people who were not included in the society of four varnas, which was made by the Brahmins, uh, they were having, you can say, always conflict with them. And the Brahmins also considered uh, these people as untouchables because they were not belonging to the society, and they were having different uh, behavior. They were having different beliefs, their attitudes were different. So they were regarded as someone who are untouchables, as they were not belonging to the society. This rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those designated as untouchables. तो इनका कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण्स जो कि वर्ण सिस्टम में सबसे ऊंची कैटेगरी में आते थे, वो ऐसे लोगों को अवॉइड करते थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, बिकॉज उनका काम जो होता था वो काफ़ी मतलब ऐसा होता था जो कि उनके उसमें सही नहीं माना जाता था, क्योंकि उनका काम जो ये ब्राह्मण्स करते थे मोस्टली हाई देवर teaching the Vedas, preaching the Vedas to the people, and they were organizing sacrifices to please the god, um, doing all the religious ceremonies and rituals. So they regarded themselves as very pure, as they considered that they are the people who are very close to God, as they were doing all the things to please the God, like uh, the religious ceremonies and all that. But those who were doing the things uh, like disposing of the dead bodies and all that, they were regarded as untouchables, and so these Brahmins were maintaining distance from them so that they can maintain their purity. Uh,
in sharp contrast to the purity aspect. Some activities were regarded as particularly polluting, these including handling corpses and dead animals. मतलब ये जो अनटचेबल्स थे ये मोस्टली शूद्र के भी जो फोर वर्णास का जो लास्ट वर्णास था शूद्र, उनमें भी एक कम्युनिटी थी जिनका काम होता था एक तरीके से स्कैवेंजर्स की तरह से थे ये, जो कि डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड कॉर्प्स, उनके कॉर्प्स यानी कि उनके डेड बॉडीज़ को हटाने का काम करते थे, जो कि ब्राह्मण्स के नज़र में एक अच्छा काम नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्ट डेड बॉडीज़ के कांटेक्ट में आते थे और उनको ये लगता था बिकॉज डेड बॉडीज़ में हैव सम infection in them and they are coming in contact with the corpses of the dead bodies, so they might also have some infection, so they were not considered as pure और इसकी वजह से उनको untouchables भी कहा जाता था. Those who performed such tasks designated as Chandals, और उनको एक नाम दिया जाता था जिसको कि चंडाल्स बोला जाता था, वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की. मतलब शूद्र में भी सबसे जो निचले तबके के लोग होते थे, जो सबसे नीचे स्तर के लोग होते थे, उनको चंडाल्स बोला जाता था और उनका काम होता था डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करना, चाहे वो एनिमल्स की हो या ह्यूमन बींग्स की हो. देयर टच and in some cases even seeing them was regarded as polluting. मतलब sorry for the interruption that has been caused because of this. तो उनके लिए ऐसा बोला जाता था कि वो अगर छू लें तो भी उससे इन्फेक्शन होने का खतरा है, क्योंकि वो ऐसे डेड बॉडीज़ की कांटेक्ट में रहते हैं जिनके अंदर हो सकता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, और क्योंकि वो डायरेक्ट डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करते थे इसलिए वो इन्फेक्शन उनके भी आ सकता है, और इसकी वजह से उनको उनका छूना भी एक तरीके से पॉल्यूटिंग माना जाता था कि इससे उनको भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता था, और इवन उनको देखना भी एक तरीके से वर्जित था. Their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting by those who claimed to be at the top of the social order. The Manusmriti laid down the duties of the Chandals. मतलब मनुस्मृति ने बताया है कि चंडाल्स के क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए और उनको किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए. They had to live outside the village, use discarded utensils and wear clothes of the dead and ornaments of iron. उनके बारे में मनुस्मृति ने ये बोला है कि जो चंडाल वर्ग को बिलोंग करते थे उन लोगों को सबसे पहले तो समाज से दूर एक बहुत दूर बस्ती में रहना पड़ता था, जो कि गांव से काफ़ी दूर होती थी, और उनको नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था. उनको वही कपड़े पहनने को दिए जाते थे जो कि डेड बॉडी से उतारे जाते थे, और दूसरा वो उन बर्तनों में खाना खाते थे जो कि फेंक दिए जाते थे, टूटे फूटे होते थे, डिस्कार्ड कर दिए जाते थे, और वो सोने चांदी के आभूषण नहीं पहन सकते थे, उनको लोहे के ही बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनने को दिए जाते थे. इस तरह से वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाते थे कि लोग दूर से ही देख के समझ जाते थे कि चंडाल्स आ रहे हैं, और इस तरह से वो अपने आप को चंडाल्स की देखने से अपने आप को बचा पाते थे. They could not walk about in the villages and cities at night. और उनको इवन गांव या शहरों से रात में गुज़रने की भी मनाही थी,
they had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners. और इसके अलावा वो डेड बॉडीज़ को तो डिस्पोज ऑफ करते ही थे, बल्कि उन डेड बॉडीज़ को भी डिस्पोज ऑफ करते थे जिनके कोई भी रिलेटिव्स नहीं होते थे, या जिनको हम कह सकते हैं कि लावारिस लाशें जो उनको मिलती थी, तो उनको भी उनकी भी अंत्येष्टि करना, उनको डिस्पोज ऑफ करना उनका काम होता था। और इसके अलावा वो एग्जीक्यूशनर्स का भी काम करते थे, नहीं जल्लाद का काम करते थे। तो जिन लोगों को डेथ पनिशमेंट मिलती थी किसी न किसी ऑफेंस के लिए, तो उनको मृत्यु दंड देने का काम इन्हीं चंडाल्स का होता था। ये एक तरीके से मृत्यु दंड भी, मतलब जिनको मृत्यु दंड की सज़ा मिली होती थी तो उनको मृत्यु भी देने का काम यही करते थे। इनको जल्लाद भी कहते थे। Much later, the Chinese Buddhist monk Fa Xian, 5th century CE, wrote that untouchables had to sound the clapper in the streets so that people could avoid seeing them. और अगर ये कभी भी शहरों से निकलते थे दिन के समय, रात में तो इनका बिल्कुल ही वर्जित था गांव या शहर से होकर निकलना। और अगर दिन के समय भी किसी काम से इनको निकलना पड़ता था तो इनको ताली बजाते हुए निकलना पड़ता था, ताकि अगर इससे लोगों को ये पता चल जाता था कि चंडाल आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं छुप जाते थे ताकि वो उनको ना देख पाएँ। तो ये चीज़ जो है किसने लिखी है, जो यहाँ पे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क आए फा जियान 5th सेंचुरी में जब आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। Another Chinese pilgrim, Xuan Zhang, 7th century, observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. और इसके अलावा इनके बारे में ज़ुआन ज़ैंग जो कि चाइनीज़ पिलग्रिम थे, जब वो 7th सेंचुरी में आए थे तो उन्होंने भी इन चंडाल्स के बारे में वर्णन किया है कि ये जो चंडाल्स, ये एग्जीक्यूशनर थे, इनको मेन गांव से या विलेज से दूर उनकी एक अलग, मतलब शहरों से अलग काफ़ी दूर उनकी अपनी एक बस्ती होती थी जहाँ पे वो रहते थे। उनको मेन शहर या मेन गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी। By examining non-Brahminical text which depicts the life of Chandals, तो ज़्यादातर चंडाल्स के बारे में जो वर्णन मिला है वो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में मिला है, जैसे कि ट्रैवलॉग्स में मिला है। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे तो उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स यानी यात्रा वृतांत में इनके बारे में लिखा है, जैसे कि फा जियान या ज़ैंग ने या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने भी इनके बारे में अपने टेक्स्ट में वर्णन किया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। Historians have tried to find out whether Chandals accepted the life of degradation prescribed in the Shastras. तो इस चीज़ के बारे में जो इनके बारे में लिखा गया है, इतना ज़्यादा मतलब इनके बारे में वर्णन किया गया कि किस तरह से इनको अनटचेबल्स कहा जाता था, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, इनका बहुत ह्यूमिलेशन किया जाता था। तो क्या उन्होंने इसको आसानी से एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस किया था, मतलब अपना कुछ इन्होंने जो इनके साथ बर्ताव किया जा रहा था समाज के उच्च वर्गों के द्वारा, इसके प्रति इन्होंने कुछ विद्रोह किया था। तो इसके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं ये पता करने की कोशिश, या इन्होंने चुपचाप उस चीज़ को स्वीकार कर लिया था। Sometimes these depictions correspond with those in the Brahminical text. ये कह रहे हैं कि कुछ जो डिपिक्शंस हैं, जो कुछ वर्णन मिलते हैं नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, वो कई बार जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो मिलते हैं उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटीज़, लेकिन कई जगह पे इनमें भी काफ़ी मतभेद हैं, जैसे कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनके बारे में लिखा है या नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनके बारे में लिखा है।